वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अनीता। आज हम देखेंगे वुमेन एम्पावरमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का पेपर। ये आज का पेपर है 28/4/2026 का। तो आज हम इसी का सॉल्यूशन देखेंगे। द वर्ड एंटरप्रेन्योर इज टेकन फ्रॉम विच लैंग्वेज? तो इसका सही आंसर है फ्रेंच। एंटरप्रेन्योरशिप इज डैश फॉर ऑल बिजनेस द नेसेसरी। Entrepreneur is capital of industry. Who said entrepreneur is capital of industry? ये किसने कहा था? तो मार्शल ने कहा था। At present, entrepreneurship is commercial and industrial, innovating service, all of the above. The role of an entrepreneur is in a developing economy is as an initiator, organizer, and coordinator. Sources of business ideas are all the above. Dash is included in the source of entrepreneurship: commercial entrepreneurship, innovational entrepreneurship, service entrepreneurship, all of the above. The common concept is that the woman dash in their decision power lack. Dash is much useful development for women entrepreneur private sector. Project is prepared by promoters, manager and entrepreneur. All this. Project report is a summary of facts, information, analyze. All of this. What is the main objectives of rural entrepreneurship? Development of rural area. तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है रूरल एंटरप्रेन्योरशिप का कि डेवलपमेंट हो सके रूरल एरियाज का। हु प्रमोट फाइनेंशियल असिस्टेंस टू रूरल इंडस्ट्रीज? गवर्नमेंट एंड बैंक्स। व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप? एंटरप्रेन्योरशिप की बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है? लैक ऑफ कैपिटल, पूंजी की कमी। What is a major challenge faced by new entrepreneur? एक जब न्यू एंटरप्रेनर आता है तब उसमें मेजर चैलेंज वो क्या फेस करता है? लैक ऑफ एक्सपीरियंस, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है। What is necessary to promote entrepreneurship? Education and training. What is the meaning of innovation? नवाचार का अर्थ है डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंड यूजफुल आइडियाज। Creativity is relating to generating new ideas. What is the most important element of a new enterprise idea? The term startup is related to new business. Who is an entrepreneur? A person who start a business by taking risks. तो entrepreneur क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है और रिस्क को भी लेता है, रिस्क भी उसे मतलब रिस्क भी उसको बियर करना पड़ता है, तभी वो एक एंटरप्रेन्योर कहलाता है। द सक्सेस ऑफ न्यू एंटरप्राइज डिपेंड ऑन ऑल ऑफ दिस। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ creative thinking? Identification of problem. Why is a business plan important for investor? Answer: to understand the business potential. From whom does a business plan act as a guide? Entrepreneur. What happened to risks with a business plan? Decrease. What is included first in a project proposal? Introduction. In which section is the cost estimation given in a project proposal? Financial detail. Which part of a business plan introduce the company? Executive summary. Which agency evaluate a project? Financial and non-financial institution. Which of the following is a financial institution? तो क्या आएगा उसका आंसर? बैंक। On what basis do non-financial institutions evaluate a project? Social impact. What do bank focus on while evaluating a project? Repayment capacity.
What is the main advantage of evaluation by external agency? Unbiased decision. What is the main objective of micro, medium, and small scale industry? To create employment. What are the types of medium scale industry? Between small and big. When was District Industry Center established? 1978. Whom does the District Industry Center mainly promote? New entrepreneur. When was Khadi and Village Industry Commission established? 1956. Where is the headquarter of KVIC? KVIC का full form है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन. लोकेटेड आंसर मुंबई. NSIC का फुल फॉर्म है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन. Which scheme is operated by नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन? ये देखिए इसका फुल फॉर्म भी नीचे उन्होंने लिखा भी हुआ है, ऑपरेटेड नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन. तो रॉ मटेरियल असिस्टेंस स्कीम. What type of institution is Small Industry Development Bank of India? तो सिडबी कैसी इंस्टीट्यूशन है? तो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. What service are provided by Small Industry Development of India? Financial and developmental service. What is the primary objective of commercial bank? Answer: earning profit. What is the Pradhan Mantri Mudra Yojana related to? लोन टू स्मॉल बिजनेस. तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में लोन मिलता था स्मॉल बिजनेस के लिए, जैसे उनके बिजनेस वो आगे बढ़ा सकें. तो विच ऑफ द मेजर स्कीम टू प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना. तो मेजर स्कीम टू प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, जैसे वो खुद का कमा सके और आगे बढ़ सके, उसके लिए कौन सी स्कीम निकाली थी? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टार्टअप इंडिया इज प्रमोशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है स्टार्टअप का? जैसे प्रमोशन हो सके एंटरप्रेन्योरशिप का. What is the main objective of an इक्विटी फंड? कैपिटल एप्रिसिएशन. तो इक्विटी फंड का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? कैपिटल एप्रिसिएशन. तो यहाँ पे ख़त्म होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के. अब हम देखेंगे वुमेन एम्पावरमेंट के. पार्ट बी, वुमेन एम्पावरमेंट. फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन? तो इन सारी स्टेटमेंट में से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है. सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन. सोशल स्टेटस वुमेन का कैसा था ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड इज करेक्ट. तो इन सब में से बताना है कि वैदिक पीरियड में सोशल स्टेटस कैसा था वुमेन का. तो दे हैड द राइट टू ओपनियन सेरेमनी एंड एजुकेशन. What were the brief regarding marriage in ancient India? So girls could freely choose their husband. What challenges occurred in the status of women during the later Vedic period? So there was decline in education and political participation. Who was the only female ruler of Delhi सुल्तनत? तो एक मात्र महिला कौन थी जो दिल्ली सल्तनत की महिला शासन बनी थी? तो रजिया सुल्तान. विच प्रैक्टिसेस वर प्रिवलेंट इन मेडिवल इंडिया? तो मध्यकालीन भारत में कौन सी प्रथाएं चलती थी? तो प्रार्थना प्रथा, चाइल्ड मैरिज एंड सती. तो ऑल ऑफ दिस. Which article of the Constitution related to equity before the law? तो आंसर है इसका आर्टिकल 40. When was the All India Women Conference founded? 1926. 1926 में All India Conference का फाउंड हुआ था. What right did women receive under Hindu Succession Amendment Act 2005? तो right equal to those of son in the father's property.
तो हिंदू सुसेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 में गर्ल्स को भी उतना ही राइट मिला था जितना बॉयज़ को मिलता है उनकी फादर की प्रॉपर्टी में। तो ये हिंदू सुसेशन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट निकाला था 2005 में। Which dimension of woman empowerment is a freedom to make decision? Personal, family, Which sector is the Beti Bachao Beti Padhao scheme related to? Educational and social. Education and social sector related है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम से। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द महिला शक्ति केंद्र स्कीम? तो महिला शक्ति केंद्र स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रोवाइडिंग स्किल्स एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी टू रूरल वुमेन। तो रूरल वुमेन जो ग्रामीण महिलाएं थी उनके कौशल के लिए, उनके विकास के लिए उनको अवसर प्रोवाइड कराना, उनको अवसर प्रदान कराना, जैसे वो उन्हें अपॉर्चुनिटी देना जैसे वो अपने स्किल्स पे काम कर सकें और आगे बढ़ सकें। By which constitutional amendment was reservation for women in panchayat and municipalities made mandatory? 73 and 74 Constitution Amendment. Under which article of the Constitution are sexual exploitation and abuse against women prohibited? तो अनुच्छेद आर्टिकल 23 में ये जो वुमन के अंतर्गत उनके जो खिलाफ यौन शोषण एवं दुर्व्यवहार के प्रति अनुच्छेद निकाला था, तो वो आर्टिकल 23 था। हाउ मैनी सीट हैव बीन रिजर्व फॉर वुमेन इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली? तो कितनी सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व की गई थी लोकसभा में एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में? तो 1/3। Under which article of Constitution do women receive the right to equal pay and equal work? आर्टिकल 39 में। तो आर्टिकल 39 में संविधान के अनुच्छेद में अंतर्गत महिलाओं को कार्य करने के लिए जो समान कार्य करती हैं, जब महिलाएं पुरुषों जितना ही, तो उन्हें वेतन भी उतना ही मिलेगा जितना एक पुरुष को मिल रहा है उतना ही महिलाओं को भी मिलेगा। ऐसा पहले बहुत बार होता था कि महिलाओं को वेतन कम मिलता था जबकि महिलाएं भी उतना ही काम करती थी और पुरुष को ज़्यादा वेतन मिलता था, इसलिए ये आर्टिकल 39 निकाला था। आर्टिकल 39D के अनुसार महिलाओं और पुरुषों दोनों को ही अगर वो सेम काम कर रहे हैं तो उनको सेम पैसे मिलेंगे। टू वॉट इज द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना रिलेटेड? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे रिलेटेड है? एलपीजी कनेक्शन से। अंडर द सुख्य समृद्धि योजना अप टू द what age of the daughter starting from birth can an account be open? तो सुख्य समृद्धि योजना में जो एक लड़की का बर्थ होता है तो उसमें उसकी कितनी एज होना चाहिए उसका अकाउंट खुलवाने के लिए? तो अप टू 10 ईयर, तो 10 साल तक वो बच्ची होना चाहिए, तभी उसका सुख्य समृद्धि योजना में उसका अकाउंट खुलेगा। How much financial assistance is provided under the प्रधानमंत्री वंदना योजना? तो फाइनेंशियल असिस्टेंट कितनी सहायता प्रोवाइड की जाती है, सहायता राशि प्रधानमंत्री वंदना योजना में? तो 5,000 तक की राशि दी जाती है। When was the first national policy for women empowerment adopted? तो महिला अशक्तिकरण के लिए पहली बार राष्ट्रीय नीति कब अपनाई गई थी? 2001 में, जैसे वुमेन का एम्पावरमेंट हो सके, वुमेन भी पैसे कमा सके और पढ़ लिख के आगे बढ़ सके, तो वो नेशनल पॉलिसी कब आई थी? 2001 में। व्हाट इज महिला ई हाथ? एन ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर। तो महिला ई हाथ क्या है? एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर वुमेन है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर। जो एंटरप्रेन्योर हैं जो काम कर रही हैं ऑनलाइन, उनके लिए ये बनाया गया था महिला ई हाथ। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मुख्यमंत्री लाडली बहना स्कीम? एनहेंसिंग वुमेन्स इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस एंड हेल्थ।
तो लाडली बहना स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था मुख्यमंत्री का? तो महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता एवं स्वास्थ्य सुधार के लिए। तो जैसे महिलाओं को कुछ पैसे मिल जाए तो उनके स्वास्थ्य के लिए भी, और जो उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी उनकी सही हो सके महिलाओं। अंडर द चीफ मिनिस्टर्स वुमेन एम्पावरमेंट इनिशिएटिव हु इज गिवन प्रॉपर्टी? तो वुमेन who are victim of violence or facing difficulties circumstance. What is the objective of लाडली लक्ष्मी योजना? तो लाडली लक्ष्मी योजना का क्या ऑब्जेक्टिव है, उसका क्या उद्देश्य है? तो विवाह तक आर्थिक सहायता और शिक्षा। तो जब तक एक लड़की का विवाह नहीं हो जाता तब तक उसको आर्थिक सहायता प्रोवाइड करना और उसको शिक्षा भी मिलना एजुकेशन के लिए। तो ये लाडली लक्ष्मी योजना स्कीम निकाली गई थी। What is the primary goal of women's empowerment? तो प्राइमरी गोल क्या रहता है वुमेन एम्पावरमेंट का? प्रोमोटिंग जेंडर इक्वलिटी। What is the objective of protection of women from domestic violence act? तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में क्या मेन ऑब्जेक्टिव रहता है वुमेन के प्रोटेक्शन के लिए? तो प्रोवाइडिंग लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। तो वुमेन को एक लीगल प्रोटेक्शन सरकार के द्वारा सहायता मिल सके जैसे वो डोमेस्टिक वायलेंस से बच सके। Which of the following is not a dimension of women empowerment? Answer D. What is the biggest obstacles to women empowerment? Answer D. Domestic violence and sexual harassment. What is the impact of female feticide on women empowerment? Answer: it decreases a gender imbalance. What is the most essential task of women's empowerment? तो सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क क्या था वुमेन एम्पावरमेंट का? बेटर एजुकेशन, हेल्थ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। When was the first women committee established in India? 1917. Which is India's oldest women group? तो ऑल इंडियाज वुमेन कॉन्फ्रेंस AIWC. What impact do self-help group have on lives of women? All of the above. पढ़ लीजिएगा आप सारे। How do self-help group contribute to social empowerment? All of the above. तो सोशल हेल्प ग्रुप कम्युनिटी का सोशल एम्पावरमेंट, वुमेन की सोशल एम्पावरमेंट में क्या योगदान रहा? तो बाय ब्रेकिंग थ्रू ट्रेडिशनल बैरियर्स, by increasing literacy rate, by providing health and nutrition, all of the above. What is the percentage of reservation of women in Panchayati Raj institution? तो 50%. Which program is organized to empowered women? Training and awareness program. What literacy initiative did Rani Ahilya Bai Holkar undertaken for widow, supported widow remarriage and ensured the property right of childless widow? What measure did Ahilya Bai Holkar take for the safety of women? Answer B. Women guided the freedom to step out of their home. Which strategy did Rani Durgavati adopt in the war against the Mughal? Answer: struggle with self-respect and valor. Against which Mughal commander did रानी दुर्गावती वेज वार? तो रानी दुर्गावती ने किसके विरुद्ध, कौन सा मुगल सेनापति था जिसके विरुद्ध उन्होंने वार चलाया था? तो आसफ खान के लिए उन्होंने वार चलाया था। Who is known as India's first female educator? तो इंडिया की फीमेल एजुकेटर कौन थी? तो सावित्री बाई फुले। ये फीमेल टीचर थी, पहली एजुकेटर थी सावित्री बाई फुले। और सावित्री बाई फुले का बोर्न कहाँ हुआ था? सतारा में हुआ था। तो इन व्हाट स्पेसिफिक एरिया डिड सावित्री बाई फुले मेक कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड
ऑफ एजुकेशन। तो गर्ल्स एजुकेशन में मॉडल फेमिनिस्ट, वुमेन्स लिबरेशन, नारी मुक्ति के लिए भी, और आधुनिक नारीवाद के लिए, और बालिका शिक्षा के लिए। ऑल ऑफ दिस। Why did Savitribai Phule establish the Bal Hatya Pratibandh Giraha? Answer B, 1863 and 1864. Which medal did Mary Kom win at the 2012 लंदन ओलंपिक्स? लंदन ओलंपिक्स में मैरी कॉम ने कौन सा अवार्ड जीता था? तो ब्रोंज मेडल उन्होंने जीता था। हाउ मैनी टाइम्स हैज मैरी कॉम वॉन द वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप? 6 टाइम उन्होंने वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप उन्होंने जीती थी। हाउ मैनी ऑर्फनेज वर एस्टेब्लिश्ड बाय सिंधुताई सकपाल? तो सिंधुताई सकपाल द्वारा कितने अनाथालयों की स्थापना की गई थी? सिंधुताई सकपाल को मदर ऑफ ऑर्फन कहा जाता था। उन्होंने कितने अनाथालय स्टैब्लिश करे थे? तो उन्होंने मोर देन 5 से अधिक उन्होंने अनाथालय स्टैब्लिश करे थे, उन्होंने बनाए थे और उनकी स्थापना करी थी। अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी अवार्ड वॉज सिंधुताई सकपाल हॉनर्ड विथ ड्यूरिंग हर कैरियर? तो उन्होंने अपने पूरे करियर में कितने अवार्ड्स जीते थे? तो मोर देन 750, 750 से अधिक, मोर देन 750 उन्होंने अवार्ड जीते थे सिंधुताई सकपाल ने। टेसी थॉमस इज नोन बाय अ पॉपुलर निकनेम? तो टेसी थॉमस किस पॉपुलर निकनेम से जानी जाती थी? तो उनका पॉपुलर निकनेम था अ मिसाइल वुमन ऑफ इंडिया। टेसी थॉमस को मिसाइल वुमन कहा जाता था इंडिया का। इन विच ईयर वॉज इंदिरा नॉय अवॉर्डेड द पद्म भूषण? तो किस साल इंदिरा नॉय को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो 2007 में। वाई डिड इंदिरा नॉय रिसीव हर ईयरली एजुकेशन? तो इंदिरा नॉय ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से करी थी? चेन्नई से करी थी उन्होंने। लास्ट क्वेश्चन, एट विच प्लेस डिड गोरा देवी लीड अ मूवमेंट स्टॉप द फेलिंग ऑफ ट्री? तो गोरा देवी किस मूवमेंट से जुड़ी हुई थी? तो गोरा देवी चिपको मूवमेंट से जुड़ी हुई थी और उन्होंने ट्रीज के कटाई रोकने के लिए, पेड़ों की कटाई रोकने के लिए आंदोलन चलाया था। बट वो कहाँ पे चलाया था, किस विलेज में चलाया था? तो रेनी विलेज से उन्होंने यह आंदोलन चलाया था। तो उस विलेज का नाम था रेणी विलेज, रेणी गांव उस विलेज का नाम था। आई होप आपको सारी आंसर समझ आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।